Hello friends, welcome to my YouTube class. And as you know, we are going through the chapter digestion and absorption. And I think you must have watched the previous two videos of this chapter. And this is the third video for this chapter. And today, in this video, we will go through the topic absorption of the digested food. And this is the last topic of this chapter. So let's start. एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट्स। तो प्रीवियस वीडियोस में जो हमने देखा कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन कैसे होता है, तो जब डाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कैसे होते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। तो एब्जॉर्प्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और इनटू द लिम्फ। तो जैसा हम जानते हैं कि जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसल लेयर पर ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम विलाई बोलते हैं या माइक्रोविलाई बोलते हैं। तो उसी के हेल्प से ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब होकर या तो ब्लड में जाएंगे या तो लिम्फ में जाएंगे। The site of absorption is mainly small intestine where villi and microvilli are present. So this point is clear to you. They play important role in absorption of nutrients by the means of diffusion, active or passive and facilitated transportation mechanism. तो ये सारे मैकेनिज़्म हैं जिसके थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं और पूरी बॉडी में फिर सर्कुलेट होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ monosaccharides and amino acids. So the carbohydrates are mainly broken down into the form of monosaccharides. तो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग अपने डाइट में लेते हैं जब वो उसका डाइजेशन होता है तो उसका जो सिंपलर फॉर्म है दैट इज़ कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड्स। क्योंकि हम डाइजेशन में जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है मोनोसैकेराइड और दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। द प्रोटीन्स आर ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल अमीनो एसिड्स। और प्रोटीन्स किस में होता है, अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ monosaccharides like glucose and amino acids are generally absorbed by simple diffusion method. Some fructose and amino acids are absorbed with carrier proteins called as facilitated transport. Now absorption of water. So water absorption takes place in the large intestine and it occurs by osmosis from the lumen of the large intestine through epithelial cells and blood capillaries in the villi. Transport of water depends upon the osmotic gradient. The absorption of water from the small intestine is associated with the absorption of electrolytes and digested food in order to maintain an osmotic balance with the blood. Now absorption of fats. So fatty acids and glycerol are insoluble in water. This cannot be absorbed in the bloodstream directly. So these are first converted into small droplets called micelles with the help of bile salt and phospholipids. तो जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं उस बाइल सॉल्ट्स के हेल्प से ये जो ग्लोब्यूल्स हैं वो मिसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन दे मूव टू द स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा और उसके बाद जो मिसल्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसल लेयर में इंटर करते हैं। These are absorbed into intestinal cell through diffusion. Then these are reformed or synthesized into small protein coated fat globules called chylomicron, and these chylomicron are then transported into the lymph vessel in the villi. Then the lymph vessels release these substances into the bloodstream. तो इस तरह से फैट ग्लोब्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। Now absorption of salt. So electrolytes, mainly sodium, are absorbed into the blood by active transport through mucosal cells. Chloride ions are mainly absorbed by simple diffusion or active transport. अब आता है नेक्स्ट स्टेप डाइजेशन प्रोसेस का, दैट इज एसिमिलेशन. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स और सब्सटेंसेस गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस सेल्स और बॉडी. तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने फूड में लिया वो सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन होने के बाद
पूरी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इस तरह से वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है। और जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है हमारा, उस प्रोसेस के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स एनर्जी रिलीज करते हैं। Egestion, elimination of undigested food is called elimination, and it is the last step of the digestion process. Now the disorders of the digestive system, मतलब कौन कौन से disorders हैं जो digestive system से related हैं। पहला है jaundice। तो jaundice क्या है? It is the symptom of liver malfunctioning. Bile pigment begin to excrete through the other parts of the body due to their increased accumulation level in the blood. Thus the skin and the white protein of eye turns yellow. तो जो येलोइंग ऑफ स्किन होता है या येलोइंग ऑफ द वाइट पार्ट ऑफ द आई होता है, वो दैट इज़ ड्यू टू जॉन्डिस होता है। दूसरा है वोमिटिंग। तो वोमिटिंग क्या है? इट इज़ द फोर्सफुल थ्रोइंग आउट ऑफ द हार्मफुल कंटेंट ऑफ द स्टमक थ्रू द माउथ। माउथ से जब उल्टा वापस आ जाएगा हमारे स्टमक का कंटेंट, दैट इज़ कॉल्ड एज वोमिटिंग। डायरिया क्या है? इट इज़ द कंडीशन ऑफ एब्डोमिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फेसेस। तो जो फेसेस हम पास आउट करते हैं वो बिल्कुल लिक्विड हो जाता है और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाता है, तो बार बार हमको स्टूल पास आउट करने जाना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन क्या है? इट इज़ अ कंडीशन ऑफ डिफिकल्ट और इरेगुलर डिफिकेशन ड्यूरिंग विच द फेसेस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम। मीन्स जब पेट साफ ना हो अच्छे से, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन। और इनडाइजेशन क्या है? इन दिस कंडीशन food is not properly digested by the digestive system that leads to feeling of fullness. So these are the different disorders of the digestive system, and with this topic the chapter is finished. Thanks a lot for watching my video. Thanks a lot.